here to discuss a very important, relevant, and indispensable topic, that is fact, fiction, and fake news, the writer's responsibility. Before I say something about the subject, I introduce the panel. He is the author of 13 books across genres and is widely known for her popular Pursuit series. Her writing powerfully celebrates feminine strength and highlights women's issues. With a master's degree in human rights, Sujata also brings rich professional experience as a psychological trainer and is the founder of the Talk It Out Express, a talk therapy platform promoting emotional well-being. She serves as a vice president of Wiki Arts Leadership Council, Delhi, and has received several prestigious awards, including 100 Women Faces Award, Best Fiction Award, and the PVLF Author Excellence Award. A big applause for her. Then we have Mr. Ashwani Bhatnagar, a distinguished author, journalist, and a documentary filmmaker. He has held senior positions, editorial positions, with leading publications such as Times of India, The Tribune, The Pioneer, and has also headed 2 TV news channels. A former professor and dean at SGT University, he is the author of 18 acclaimed books across fiction and non-fiction. His notable works include The Lotus Years, nominated at Tata Lit Live, Amrita and Victor, named Page Turner of the Year 2023, and Farooq of Kashmir. We have also with us Mr. Tanmay Sharma, a multifaceted professional who truly wears many feathers in his cap. He is an entrepreneur, author coach, and publisher, the founder of Literary Launch Publication. In addition, he is also a book design consultant, celebrity branding consultant, and event curator. A dynamic force in the literary and creative space, Mr. Sharma brings together vision, creativity, and enterprise. Thank you, Mr. Sharma, for being with us. Relevant and very important subject. In fact, for today's world, a burning issue. In today's instant and constant information, the line between the fact, fiction, and fake news has got blurred. Or digital content creators, I think they have become very important. They are powerful in shaping the public opinion. While fiction allows imagination, factual writing requires honesty, responsibility, and ethics. Fake news misuses the words and misleads us. Despite pressure from algorithms, ideologies, and manufactured narratives, writer remains guardians of truth. I hope every one of you agree with that. This panel explores their moral responsibility, the fine line between the creativity and distortion, and why truth still matters for a healthy society, and fake news in today's media landscape. Media landscape. Thank you so much, Vinod, for that question. But before I answer that, I'm very happy to be here. Thank you so much for inviting me. I can't see Mahesh ji here, but thank you to his entire team. This is my first trip to Hapur also, so I got a chance to visit this lovely city and listen to some really amazing talks in the morning. One of them was Sir yours, and I will be like many of us here. I'm taking back that word Deepak जो आपने इस्तेमाल किया, lamp, and also I think that metaphor of lamp रख के सर पे रख के चलने वाला. Both these things I'm taking back with me, and I'm hoping that I'll get to use it somewhere constructively. So thank you so much. Now, again, before I respond to the question that you've asked me, let's go back to the title once again. We all know what these keywords mean. One is fact, the second is fiction, and the third one used here is fake news. And what is the responsibility of a writer? Now, fact सभी जानते हैं what it is. I'm going to speak in English because as मैं
मैं देख रही हूँ सुबह से everybody is talking in Hindi and English mix, so I will use both the languages, a mix of both. So facts we know is reality, genuine. It cannot be denied. Fake again is something that is deceptive, that is false. So हम fake जब बोलते हैं तो we try to deny the reality. But what is fiction? Now that is where I come in as a fiction writer. What is fiction? So when we think of fiction, it is something where we think of the word, अगर हिंदी इस्तेमाल करते हैं तो काल्पनिक, imagination, where you use your imagination a lot. And so there is a difference between, sometimes we interchangeably use fiction and fake. कई बार हम एक दूसरे के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं इन वर्ड्स को, but fiction is more related to imagination, and fake is you are denying or falsifying what is the reality, right? Now, when a fiction writer comes in, my responsibility as a writer, which I have been reflecting on since my third book, I don't say my first or second book, but my third book onward, is because I am an accidental writer. I started writing not because I wanted to be a writer, unlike some of our co-panelists here who their profession was writing. He's a veteran journalist and a dear friend of mine. So is Tanmay, of course. But the thing is that I became a writer just by chance. Writing found me, and so my first and second book just went into writing a story. I wanted to express myself. I had this curiosity about the subject. I wanted to explore it, and a story came about. I approached a few publishers. They published it. It became a huge hit. I'm talking about my first novel. Rupa published it, In Pursuit of Infidelity. I wrote about it. It became a huge hit, and they then sort of my external environment and from within this came that I should write another one, and that's how मैं लेखक बन गई. उसके बाद जब तीसरी किताब लिखने की बारी आई, that is the time when I started thinking about the responsibility of a fiction writer or a writer. कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो मन में आ रहा है वही लिख दूँ. अभी कुछ देर पहले एक पैनल में चर्चा हो रही थी, साहित्य क्या होता है या साहित्य में क्या होना चाहिए. Is it benefiting the society in any manner? Is it a positive contribution? What is the intent? So the intent takes primary focus. I'm talking specifically about my writing. My intent, whenever I'm writing any subject that I pick and I write across genres, आपने mention किया, मैं 13 किताबें लिख चुकी हूँ, 13 अलग-अलग genres में हैं. Mainly I started with modern day relationship, romance, मैरिज, इस पे किताबें लिखी हैं मैंने. शुरुआत मेरी ऐसे हुई परसूट सीरीज से. उसके बाद आई वेंट ऑन टू राइट सोशो पोलिटिकल थ्रिलर. आई रोट अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. आई हैव रिटन पोएट्री and I've written non-fiction. One of them is a single parenting book. Now let's talk about the single parenting book. The intent was very clear. I did not want to glamorize single parents, or I did not want to only talk about the challenges of single parenting. I wanted to portray as it is, the reality as it is. So the intent was very clear कि single parenting के बारे में बात करनी है. अभी तक तो उसके बारे में इंडिया में mine is the first hand guide on single parenting. I have to be, as a storyteller, whether as a fiction writer or if I'm writing non-fiction also, the thing is my intent has to be very clear. My honesty to my craft has to be very absolutely there. Ki I'm honest to my craft. That is why I write, or that is how I introduce or show my work to the readers. Okay, thank you. Now I come to Mr. Bhatnagar. Sir, for you my first question is how social media has changed the spread of news, information, and even misinformation, and how should writer respond to this challenge? Should I repeat it? Social media and writing as a creative writer are two different things. Content is not writing. तो जो हम लोग कंटेंट जो दाना देखते हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, और वो उसका राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है. वो हाफ जर्नलिज्म भी नहीं है, क्वार्टर जर्नलिज्म भी नहीं है. इट इज़ जस्ट समथिंग विच इज़ गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट वाली बात जो है. बहुत सारा कचरा जमा करके और बहुत सारा जल्दी डाल दो और वो बहुत जल्दी बाहर हो जाता है. सोशल मीडिया एक सोशल एक्सप्रेशन है, और मेरे हिसाब से अचानक हम लोगों को
कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे लग रहा है कि हर व्यक्ति को एक जुबान मिल गई है अपनी बात कहने का, अपनी बात पेश करने का, अपना सो कॉल्ड विद इन कोट्स कंटेंट को डालने का एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पे उसकी पब्लिक विजिबिलिटी हो, उसका मौका मिल गया है। अभी हम लोग बात कर रहे थे परंपरा की और साहित्य की। मेरे को याद आता है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे, तो उस समय किताबें खरीदने की दुकानें एक दो ही होती थी, लेकिन वहाँ अच्छी खासी भीड़ होती थी, अड्डेबाजी भी होती थी। स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे, किताब खरीदते थे और चर्चाएं होती थी। उसके साथ साथ लेकिन जो एक्सेस थी क्रिएटिविटी की, जैसे मैंने अगर कोई कविता लिखी है तो मैं कितने लोगों को सुना सकता हूँ, 5 7 10 मेरे जो दोस्त हैं वो सुनेंगे नहीं। ज़्यादातर तो लोग जैसे आप कहें मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, कहने आज मत सुनाओ, कल सुनाओ, या चाय पिलाओ, समोसा खिलाओ, तब ये कविता सुनेंगे। उगादी जी बैठे हैं, हमारे मित्र हुआ करते थे अनूप जी, उनसे हम लोग यही कहते थे कि भाई घर बुलाओगे शाम को, अगर कुछ खातिर वातिर करोगे तो हम तुम्हारी कविता सुनेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि द नीड टू बी रिकग्नाइज्ड, ठीक है। और आपका जरूरी नहीं आप अच्छे कलाकार हो, उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आपकी कला को कोई ऐसा एक ऑडियंस मिले जो उसकी बारीकी को अप्रिशिएट कर पाए। वो मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि मास लेवल पे नहीं था। सोशल मीडिया ने आके लाके ये स्थिति पैदा कर दी है कि बहुत सारा जो कहते हैं अपरिपक्व इमेच्योर कंटेंट आ रहा है, उसमें से ये छांटना कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है एकदम इम्पॉसिबल हो गया है। इसी सिलसिले में आपको बताता हूँ कि जब मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा काम है फैक्ट लिखना। मेरी ज़िंदगी में कोई फिक्शन नहीं हो सकता क्योंकि अखबार में कोई फिक्शन की कोई जगह नहीं है। जो फेक न्यूज़ है, नैरेटिव को पैडल करने की जो बात है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा चलन है, उससे भी हम बहुत जूझे हैं और आज भी जूझते हैं कि लेकिन उसमें होता यह है कि सोशल मीडिया की वजह से जो फेक न्यूज़ है वो इतनी जल्दी वायरल हो जाती है कि जब तक फैक्ट के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी है, बहुत सारे लोग भ्रमित हो चुके होते हैं। मैं अक्सर एक किस्सा बताता हूँ कि जो जल्दीबाजी में जो न्यूज़ और कंटेंट में बहुत बड़ा फ़र्क है। न्यूज़ में गेट कीपिंग होती है। गेट कीपिंग से मेरा मतलब है कि अगर मैं आके जी बोलता हूँ कि यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है और यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं और साहित्य का ये एक संगम है, तो जो बैठा है न्यूज़ एडिटर वो देखता है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हापुड़ में जो हो रहा है उसकी लोकल इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी स्टेट की इम्पोर्टेंस क्या है, उसी हिसाब से न्यूज़ को डिस्प्ले किया जाता है। दूसरी बात, आपकी भाषा पे बहुत बड़ी गेट कीपिंग होती है अखबार की दुनिया में कि आप क्या लिख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अक्सर हम लोग जर्नलिस्ट जो हैं, जिसको कहते हैं कि जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और इसीलिए कहते हैं कि जर्नलिज्म में होश व हवास होना बहुत ज़रूरी है। कि जब बाबरी मस्जिद में 89 में पहली बार कार सेवक घुसे थे तो मैं भी वहीं पे था और उस धक्का धुक्की में कुछ लोग अंदर चले गए, कुछ पत्रकार अंदर चले गए, फोटो ले ली वहाँ पे जो डैमेज हुआ था, और फिर उसके पुलिस ने लाठीचार्ज किया और घोड़े दौड़ाए और फायरिंग हुई, ये सब हुआ। हम लोग भागते दौड़ते अपने ऑफिस पहुँचे क्योंकि खबर भेजनी थी। हमसे पहले हमारे जो हिंदी के कॉलीग थे वो पहुँच गए और जब मैं पहुँचा करीब 10 मिनट बाद तो वो बैठे हुए थे और हम लोग दोनों बुरी तरह से मतलब परेशान थे और वो पसीने पसीने हो गए थे, पुलिस वालों की लाठी भी पड़ चुकी थी। तो हमने उनसे आके पूछा कि भाई तुमने फ्लैश भेज दिया, न्यूज़ में होता है कि एक लाइन का फ्लैश भेजा जाता है, तो उसने कहा मैंने भेज दिया। तो हमने टेलीप्रिंटर ऑपरेटर से कहा कि भाई वो फ्लैश लेके आओ, क्या भेजा है। तो हिंदी में उन्होंने लिखा हुआ था नबार्ड टाइम्स की बात कर रहा हूँ, बाबरी मस्जिद ध्वस्त। तो मैंने उसको पढ़ा, मैंने उससे कहा कि अरे प्रवीण ध्वस्त, कहना ध्वस्त कैसे लिखा है, मैंने तो क्षतिग्रस्त लिखा। तो मैंने कहा ये क्या लिखा। तो एकदम से चौंके कि मेरे दिमाग में जब वो लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्षतिग्रस्त था, लेकिन हाथ जो चला वो ध्वस्त की तरफ चला।
इन द एक्साइटमेंट ऑफ द मूवमेंट की वजह से। खैर लाइट चली गई, बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन थी, तो लाइट भी पुलिस वालों ने काट दिए कर दिया। तो 2-3 घंटे बाद हम लोग करेक्शन भेज पाए। वो करेक्शन पूरे हिंदुस्तान में चला, वो जो ओरिजिनल स्टोरी थी पूरे हिंदुस्तान में चली गई। और जो 9 रस हैं उनको जिन जिन शब्दों में बांधा वो इतने नपे तुले हैं कि उसमें आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। तो फेक न्यूज़ एक बहुत मेजर थ्रेट है, और हम लोग के लिए जैसे एज ए जर्नलिस्ट हम लोग जो कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी ने वो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ के बाहर चली गई। तो फेक न्यूज़ इज हेयर टू स्टे, और डीप फेक और ये सब की बातें जो हम लोग सुनते हैं, जी हाँ। और सबसे बुरी बात उसमें जो ये है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो मेरा टेलीविजन वालों से यही सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम रही है, और मैं लगातार इस बात को हर मंच पे और एडिटोरियल मीटिंग में भी उठाता रहता हूँ कि जो भाषा की का संयम होना चाहिए वो टेलीविजन में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसे आप अखबारों में देखेंगे, हिंदी के अखबारों में, अच्छा मेरा हिंदी के अखबारों से एनपीटी से बहुत बड़ा वो है कि आप अंग्रेजी के शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं। मैं जनसत्ता में मैंने 8 साल कॉलम लिखा, हर महीने में 2 बार छपता था, और मैंने 8 साल के कॉलम में एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं लिखा, एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं लिखा, जबकि मैं अंग्रेजी पत्रकार हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ हिंदी वाले अंग्रेजी में बुला के खिचड़ी सी बना के पेश करते हैं, और आज का जो साहित्य है, जो बेस्ट सेलर जिसको कहा जाता है, जो आजकल बहुत बिक रहा है, और उनके जो लेखक हैं वो हर मंच पे उपस्थित हैं, और वो दलील ये देते हैं कि आज का जनरेशन जो भाषा बोलता है उसी भाषा को अपने उपन्यासों में लिखते हैं, इंग्लिश। मैं इसको नहीं मानता, ये गलत बात है कि नई हिंदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक तो हिंदी भी क्या चीज़ है इसके बारे में भी बहस हो सकती है, लेकिन जो हिंदी हमारे पास है वो इतनी सशक्त है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके जो करेक्टर का जो बेसिक फंडामेंटल जो फाउंडेशन है उसमें अंग्रेजी डालना इतना ज़रूरी हो। तो भाषा का एक उपयोग हम लोग बहुत इजीली ये बात करते हैं, देखो वहाँ बवाल हो गया, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वर्ड। आप टेलीविजन पर रोज देखते हैं कि जब भी बारिश होती है तो दिल्ली हुई पानी पानी, बॉम्बे हुआ है बॉम्बे हुई पानी पानी, शर्मसार, ये और खुलासा वर्ड का यूज। खुलासा का क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसकी क्या मीनिंग है, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलती हुई भाषा को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो मेरा जितने भी हिंदी के साहित्यकार हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि कृपया इस पे एक मूवमेंट होना चाहिए, और स्पेशली मीडिया, जो टेलीविजन मीडिया है उसके लिए, कि भाई भाषा के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत करो। भाषा ही हमारी रीढ़ है। I have a different point of view. Yeah, you are welcome to your point of view, and that's why the television channels are prospering, because they have a different point of view. Yeah. No, that's why. So, but I hold a classical point of view, and the other thing which you mentioned, I'll just complete and then give Sure. the mic to you. Yeah. The other thing which you mentioned about fact and fiction, and Sujata also mentioned that she writes mostly fiction and it's more about imagination. तो बहुत पुरानी बात है, मैं जब पत्रकारिता में था तो मेरी मुल्कराज आनंद साहब से मुलाकात हुई, तो मैं उनका बड़ा दीवाना हुआ करता था, उनके उपन्यास वगैरह, मतलब कालजयी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं राइटर बनना चाहता हूँ, तो कैसे बनना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से एक बात बहुत कही, मैंने कहा ये फिक्शन क्या होता है, हम तो जर्नलिस्ट हैं। तो कहते हैं कि भाई ऑल फैक्ट इज फिक्शन एंड ऑल फिक्शन इज फैक्ट। दूसरी बात उन्होंने मेरे से कही कि जब भी तुम्हें सच लिखना हो तो उपन्यास लिखिए, क्योंकि जो सच, इफ ट्रूथ इज टोल्ड एज ट्रूथ it will be very hurtful, but if you have to write the truth, then turn to fiction. और आप देखिए कि जितने भी अच्छे उपन्यास हैं वो हमारी जो जिंदगी के जो हार्डकोर फैक्ट्स हैं उन पे हैं, उन पर है, लेकिन फिक्शनलाइज्ड हैं। फिक्शनलाइज्ड।
क्योंकि वो एल्बो रूम आपको मिल जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको कैरी मिल जाता है। हाँ Very well said. My contest, or what where I differ from you is on the fact that माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन है, थोड़ा सा दूसरा माइक है क्या ले लें? so yeah, I agree with you on the second point that अगर आपको truth बोलना है तो fiction में लिखिए, और अगर आपको मतलब reality is stranger than fiction, there is a idiom by that. But anyway, coming back to your previous point, language is a tool. अब ये हो सकता है कि आप आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। हिंदी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं और हिंदी में बातें करते हैं, मगर हो सकता है कि जैसे आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड जहाँ पे इंग्लिश बहुत नेचुरली बोला जाता है, और इसीलिए मैंने जब लिखना शुरू किया मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। हिंदी में आई वॉजंट वेरी कॉन्फिडेंट। अभी भी जब मैं बातें करती हूँ तो हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलती हूँ। So there is nothing wrong as long as it's a medium of communication. As long as I'm an expressionist, I want to express something about the subject, and if I have the ability to express it in a certain language in the best possible way, of course you have to be very careful the kind of words that you're using when you're writing a story, whether you're writing a story or you're telling the truth, you're writing a fact or non-fiction. It is important to pay attention to the words, but it shouldn't be a binding factor कि आप हिंदी में ही लिखिए। कई चीज़ें मैं कई बार मैंने कोशिश किया हिंदी ऑथर्स को पढ़ने का, पुराने कुछ हिंदी ऑथर्स को पढ़ने का, मगर the issue I was facing every time was that the Hindi was so pure कि वो बीच में distract करता है from the story. Now you are comfortable in that language, so you make sense out of it. I love the way you write your Hindi, which is very convenient and comfortable to the eye, and you understand what we are reading. But it's not often the case with all the Hindi writers. So I think a language will evolve. अभी तो English भी evolve होता जा रहा है. YOU is written as you. LOL is it's a accepted term by the youngsters. Laugh out loud. Now what will happen in the future, we don't know. Even the English is corrupted. That will also change. So I don't see that we have to have a certain if you're comfortable in a certain language, speak in that language, but be very, very mindful and very careful that you are a writer. You are going to impact the society or your readers who are going to read your books. So be careful about that. It is very important not only to inform, to educate through your stories or through your writing, but it is also important to evoke, to make people think, to make people feel, to at times punish them, and at times console your readers or society in general, to console them कि ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक है, give them hope कि consciously I take a decision कि मेरी कितनी भी tragic story हो, end हमेशा positive होगा। ये मैं consciously from my first book I have taken it upon myself, and I write about very serious topics. My stories are very serious, and some of them even tragic stories, but end hopeful note पे होता है. So sometimes that is also important. अगले वक्त तक बढ़ूँ। Sure. Sir, तन्मय शर्मा जी आपसे, what steps can young or emerging writers take to avoid contributing to misinformation? Can fiction sometimes convey truth more effectively than factual reporting? अभी सर ने जो बात कही वही उसी को आगे आप हैं। सर मैं बेसिकली एज अ पब्लिशर बताना चाहूँगा इसे। एक वर्ड आजकल बड़ा कॉमनली यूज़ होता है, क्रिएटिव लिबर्टीज़, है ना? that's right. तो ये बड़ा कॉमनली हम लोग भी फेस करते हैं। अगर कोई मैन्युस्क्रिप्ट आई है और सपोज उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो हम कहते हैं कि भाई आपने गलत लिखा है, ये इसमें फैक्ट्स गलत हैं, या ये बेसिकली सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, तो बहुत आसानी से ऑथर कहते हैं क्रिएटिव लिबर्टी है, वी हैव अ लिबर्टी टू से एनीथिंग। उसका एग्जांपल मैं लेता हूँ जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, स्पेसिफिकली आई विल नॉट नेम द ऑथर्स हियर। माइथोलॉजी पे सबसे ज़्यादा लिखा जा रहा है, या तो हॉरर पे लिख रहे हैं या माइथोलॉजी पे लिख रहे हैं, जो आजकल फैशन है, नए बच्चे ज़्यादा लिख रहे हैं। अब अगर हम माइथोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महाभारत पे लिखा जाता है, उससे कम रामायण पे लिखा जाता है। अब क्रिएटिव
क्रिएटिव लिबर्टीज के नाम से हम उन ग्रंथों को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं जिसमें शायद हमने नेगेटिव फोर्सेस और पॉजिटिव फोर्सेस को भी आपस में मिला दिया, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, जबकि वो स्टोरीज ऑलरेडी हमारे फोर फादर्स हमें सुनाते आए हैं इसलिए कि हमको इन दो फोर्सेस को अलग कर सकें, अलग भी कर सकें और एक हमारा जैसे कहते हैं ना कैरेक्टर बिल्डिंग, ये स्टोरीज वो हैं जो हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग में यूज होती हैं बचपन में। अब बचपन में आप बताते आ रहे हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम बहुत अच्छे थे, रावण खराब था। अब आज आके आप किताब वो पढ़ने लगे कि जिसमें रामायण फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रावण, और उसमें लिखा हुआ है कि मतलब रावण तो बहुत अच्छा था और बहुत सारी गलतियां राम की तरफ से थी, तो यहाँ वो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब यहाँ फैक्ट फिक्शन भी नहीं कह सकते, फिक्शन वो है नहीं, फिक्शन कहते ही तो आजकल बवाल हो जाएगा, है ना, फैक्ट वो है नहीं, है ना। अब वो तीसरी चीज़ क्या बची कि भाई क्रिएटिव लिबर्टीज के नाम पे हम कर लेते हैं। तो एज ए राइटर, एज ए पब्लिशर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फिक्शनलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है एंटरटेनमेंट पर्पज से, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमको ऑथेंटिसिटी का ध्यान रखना चाहिए एज एन ऑथर, डेफिनेटली जो टॉपिक है इन टूडेज पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने अभी आपको आंसर दिया। आप कोई चीज़ बिल्कुल अलग लिखिए चाहे वो गलत हो। इट्स अ पॉलिटिकल बुक। अब आप वाल्मीकि में जाए क्यों है, क्योंकि तुलसीदास ने वो मुगल राज को एक आईना दिखाया। मुगल राज के दौरान मर्यादाएं खत्म हो गई थी, हिंदू सोसाइटी ऑप्रेस थी, हम लोग उस समय एक बेचारों की स्थिति में आ गए थे। तुलसीदास ने राम के को रीइन्वेंट करके, बिल्कुल धनुर्धारी राम, आप अगर वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो धनुर्धारी वहां पे उनका बहुत कम यूज किया गया है, तलवार चलवाने में वो एक्सपर्ट थे। राम तलवार बहुत अच्छी चलाते, धनुष बाद में चलाते थे, लेकिन तुलसीदास ने उसको पलटा और उनको धनुष दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि तलवार मुगलों का सिंबल था। इसी तरह से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूँ कि तुलसीदास ने एक क्रिएटिव विजन, एक कविता, लंबी कविता जो कि हमारे पौराणिक काल से चली है, वाल्मीकि ने लिखी थी। रामचंद्र वाल्मीकि से पहले भी लोगों ने राम की कहानी लिखी थी, उन्होंने उसको पूरी तरह से रीइन्वेंट किया और एक ऐसी एक महारचना लिखी, शाया की, जो कि पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, जिसने हिंदू समाज में एक नई ऊर्जा दी, साथ साथ राम का जो मर्यादा वाला रूप है वो हम लोगों के जीवन में पूरी तरह बैठ गया। इससे तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस पर हम लोग कई बार चर्चा अपने वहाँ पे भी चर्चा मित्रों के साथ भी चर्चा करते हैं। एग्जैक्टली आपने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो हम लोग प्रायः आपस में मिलकर चर्चा करते रहते हैं। मैं आपसे ही एक और सवाल है, तो ये फैक्ट चेकिंग का रोल किसका है फिर? राइटर, एडिटर और प्लेटफॉर्म, किसका काम है ये फैक्ट चेकिंग का? मैंने कहा गेट कीपिंग की बात की मैंने, तो फैक्ट चेकिंग का जो पहला दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो राइटर की है। अब मैं राइटर की बात कर रहा हूँ, क्रिएटिव राइटर की, जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है, तो पहला दायित्व जो है वो लेखक का है कि वो अपना जो भी लिखें। मैं अगेन एक किस्सा बताता हूँ कि मुल्कराज आनंद ने कहा कि अगर तुम क्रिएटिव राइटर, मैंने कहा मैं किस पे लिखूँ, तो कहने लगा उसी चीज़ पे लिखिए जिसके बारे में आपको जानकारी सबसे ज़्यादा है। तो हमने कहा जैसे, कहने आप जहाँ पैदा हुए, जहाँ बड़े हुए, जिस एनवायरनमेंट में आप रहे, उसी के बारे में लिखिए ना। अब अमेरिका इंग्लैंड के बारे में क्यों लिखना चाहते हैं? तो फैक्ट चेकिंग वहीं से शुरू होती है। इफ यू आर रूटेड इन द रियलिटी ऑफ योर राइटिंग, देन द फैक्ट इज ऑलरेडी चेक्ड। नंबर 2, मॉडर्न पब्लिशिंग में एक तरह की और भी फैक्ट चेकिंग होती है, वो होती है लीगल फैक्ट चेकिंग और रेफरेंसेस। मेरी जितनी ज़्यादातर किताबें हैं वो उसमें बायोग्राफीज हैं, राजीव गांधी की बायोग्राफी है, फारूक अब्दुल्ला की बायोग्राफी है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो हर किताब में एक लीगल फैक्ट चेकिंग भी होती है। उसके साथ साथ जो भी हम बयान उनका छाप दे रहे हैं कि वो वहाँ गए, ऐसा किया, हो गया, आई हैव टू गिव अ रेफरेंस कि
से लिया है मैंने, ये है। सो फैक्ट चेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी जो है वो ऑथर की है, उसके बाद पब्लिशर डबल चेक करता है। और अगर आप तीसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जैसे OTT वगैरह का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ तो फैक्ट चेकिंग, वो आप किताब आपकी है, उनके लिए यही काफ़ी है, उसके आगे वो फैक्ट चेकिंग नहीं करते। अगर उनको उसको थोड़ा ट्विस्ट करना है, क्रिएटिव लिबर्टी लेनी है, मसाला डालना है, तब भी। और जैसे अभी रुपेश जी बता रहे थे कि रहते हैं तो वहाँ पे सिनोप्सिस में तैयार करती हूँ, एक शब्द के लिए पता चले किसी दिन 1 घंटे से हम कोई भी विधेयक ढूंढ रहे हैं, कोई बिल ढूंढ रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, एक शब्द पे अटके पड़े, रात के 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप एक शब्द के लिए अटके रहोगे, जब तक वो सब सही ना मिल जाए तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगले दिन मेंबर कुछ ना कुछ पूछ देगा। तो मैं अपलोड करने का टाइम हो रहा है 35 ऑलमोस्ट। मैं मैम से पूछना चाह रहा हूँ एक सवाल जस्ट, कि can fiction ever become dangerous when it closely resembles reality? Yeah, I think very much so. Dangerous or not, but it does definitely have an impact. If it is, if so let me give you an example from my own book that I've written, The Temple Bar Woman, which is a story, a revenge story of a rape victim survivor. Now, I wrote that book in response to the Nirbhaya incident that happened in 2011. वो किताब मैंने लिखनी शुरू तो पहले कर दी थी, मगर 2000 उसको मैंने बैक बर्नर में रखा था। आई वॉज राइटिंग समथिंग एल्स। 2012 में मैं आई पिक्ड अप द थ्रेड्स ऑफ द बुक अगेन एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट। जब मैं लिख रही थी उस से लेके और जब तक मैंने ख़त्म किया उसको, 4 साल लगे मुझे उस किताब को लिखने में। And today that book, it was published in 2018, and today at least 10 to 12 different research scholars have picked up that book and compared it to lots and lots of, thank you, he has also read the book, he is one of them. They have picked up the book to show how women in India are subjugated and domestic, talking about whether it's domestic violence or it's rape, how rape culture is perpetrated in the country, and people normalize it. So they have referred to the novel, and whether it is dangerous or not, at least it has that impact. Those readers who picked it up thought seriously about it and are writing articles on it, writing research papers on it, based on it. So yes, it does have an impact, a serious impact on readers. आपने 1984 एनिमल फार्म पढ़ी होगी, वो ऐसी किताबें हैं जिसने मोस्ट डेंजरस बुक्स। हाँ, और मैं पर्सनली उनसे बहुत इन्फ्लुएंस रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो रियलिटी दिखाई है उसको उन्होंने जो कैप्चर किया है उस किताबों में, दे आर वेरी डेंजरस बुक्स। उससे मैंने इंस्पायर होकर मैं हिंदी में मैंने कहा मैं किताब लिखूँगा, सटायर लिखूँगा। तो मैंने एक जो नई किताब आ रही है वो सटायर पे है, पॉलिटिकल सटायर है, और उसका टाइटल मैंने दिया है हड़बौम के गधे। तो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हड़बौम। आप अगर देखिएगा, ज़्यादातर लोगों को यहाँ हड़बौम का मतलब नहीं पता होगा, हिंदी में जो हड़बौम का मतलब और लोकल यूज़ जो है उसका, तो हड़बौम के गधे लेके ये हमने एक सटायर लिखने की कोशिश की है, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर आप लोगों के सामने आएगी हिंदी में। थैंक यू वेरी मच। कंक्लूडिंग रिमार्क्स जो मैंने अभी अपने आंसर में भी बताया आपको, एज अ पब्लिशर, और जो हमारा टॉपिक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्ट चेकिंग जैसे सर ने बताया डिफरेंट स्टेजेस पे होनी चाहिए, मगर सबसे पहली चीज़ ऑथर, क्योंकि ऑथर ने अगर मैन्युस्क्रिप्ट पूरी लिख दी है तो वो बहुत ज़्यादा चेंज करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, एंड दे हैव डिफरेंट रीजंस टू जस्टिफाई, चाहे वो क्रिएटिव लिबर्टी कह दीजिए, चाहे आप ये कह दीजिए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या वट एवर इट इज़। तो पहली चीज़ तो यही है कि एज अ राइटर आप कोई भी चीज़ अगर सबमिट कर रहे हैं पब्लिश करने के लिए, ऑफ कोर्स वो पब्लिक प्लेटफॉर्म ही होगा, किताब छप जाएगी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म ही, तो डेफिनेटली मेन जो ऑथेंटिसिटी है वो पहले ऑथर को देखनी चाहिए। बाकी तो फिर और स्टेजेस हैं ही हैं जिन पे हम थोड़ा बहुत सेंसर उसमें कर सकते हैं, बट मेन ऑथर के हाथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। बिग applause for our panelists. Wonderful panel discussion. Hello.
answers were also relevant and apt. तो थैंक यू वेरी मच. मैं चाहूँगा डॉक्टर मैत्रेसा से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और सम्मान करें हमारे पैनलिस्ट और मॉडरेटर का. साथ में मानसी यहाँ बैठी हुई, मैं उन्हें भी चाहूँगा कि वो आएँ और सम्मान करें. हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है. और सबसे बड़ी हमारे तन्मय शर्मा सर, जब मैंने इन्हें कॉल करी, बोले आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे वो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी, आप करते रहें, एक्सपेक्ट करते मेरा. अपना काम भी तन्मयता से हाँ हाँ हाँ.